खोल के रख सकते बोल सकते हैं। Guys, before we get started, can I get a confirmation from everyone that the audio and the video is good? Hi Sana, good evening. So yeah, I think finally we are live. So thanks for your patience and ऐसे भी एक कहावत है ना कि good things take time. So I hope this is true in our case as well. And I wish you all of you a very good evening. Normally when somebody wishes you good evening, ideally आपको उनका good evening से you should answer them back by saying a good evening. Thank you for your wishes. So guys, I think some of you would be knowing me by now, but for few people who don't know me yet, my name is Anurag Sharma, and by qualification, obviously I am a chartered accountant. It has been more than 10 years that I have been qualified as a CA, and in addition to CA, what would interest you is that I am also a CFA charter holder. And an interesting note to add would be that I have done my CFA along with my job. So I cleared my CA, I started with my job in one of the prominent investment banks, and it led me to realize that there is something more that I need to do, and the answer was obvious that I need to take up CFA. So I ended up pursuing CFA as well, and along with my job I completed the course in 1.5 years, which is like the least time possible. So that is little bit about me. ठीक है? Of course, as and when we proceed through the classes, obviously we will get to know each other more. Now coming back to the topic, so obviously sir ने आपको बहुत अच्छा intro दिया ही है, but for starters I will be taking the first chapter that I'm gonna take is your financial statement analysis. Financial statement analysis. Guys, can you see my board? Can I get a thumbs up from everyone? Can you see my board please? मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है क्या आपको? Perfect. So financial statement analysis में अगर आप ध्यान से देखोगे, so ये अपने आप में एक complete sentence नहीं है. There are two things that it is made up of. तो एक तो हमारा है financial statement plus उसका analysis, ठीक है ना? So the first thing that all of us should understand is कि ये financial statement बनता कैसे है. Obviously we'll talk more in detail as we go through the class, ठीक है ना? And then once we have some understanding of financial statement बनता कैसे है, then we will go on to the analysis side of it. As far as syllabus is concerned, हमको focus करना है financial statement preparation बनाने से ज़्यादा analysis के ऊपर में, ठीक है ना? But before we go into the topics, there is one thought that I want to imprint in all of you. Normally पहले क्लास में होता है ना कि जब हम किसी जर्नी के लिए रेडी हो रहे होते हैं, so there are few pointers जो हमको
याद होना चाहिए कि भैया रास्ते इस इफ़ यू हैव टू मेक दिस जर्नी फ्रूटफुल, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड बी माइंडफुल ऑफ, कि इसको अप्रोच कैसे करना है, what are the bends, what are the lefts and the rights that we have to take so that we reach our journey in time, plus it's a fruitful experience for us. तो जब भी आप CFA या कोई भी कोर्स, ठीक है ना, जब भी आप कोई फाइनेंस रिलेटेड कोर्स में इन्वॉल्व है और ख़ास करके आप CFA कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपने एक टर्म सुना होगा, नंबर्स डोंट लाई। बोलते हैं ना, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, बट आई वुड लाइक टू ऐड अ बट हियर, बट पीपल डू। ठीक है ना, तो नंबर्स डोंट लाई, ये बात सही है, लेकिन जो उस नंबर्स को बनाते हैं वो झूठ बोल सकते हैं। सो एज अ CFA स्टूडेंट और एज अ CFA चार्टर होल्डर, आपको हमेशा याद क्या रखना है कि आपको व्हेन यू स्टार्ट एनी जर्नी, आप चाहे कोई बिजनेस चालू करते हैं या आप कोई जॉब चालू करते हैं, आप पढ़ाई चालू करते हैं, एवरी इंडस्ट्री, एवरी जॉब, एवरी प्रोसेस दैट यू टेक, दे हैव देयर ओन स्लैंग्स। उनका क्या होता है, अपना ही स्लैंग्स होता है। स्लैंग मतलब गाली गलौज नहीं, स्लैंग मतलब उनका अपना टर्मिनोलॉजी होता है। ठीक है ना, सो ऑब्वियसली as and when we go through this course, I will introduce you to some of the slangs that we mostly see, that we mostly have to encounter. तो पहला slang या जो पहला terminology है, which I would like to introduce you to, is called as professional skepticism. ठीक है ना, प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म सुनने में बहुत भारी भरकम वर्ड लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट मीन्स यू शुड हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड और अ क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कोई नंबर्स मिले, जब भी आपको कोई प्रेजेंटेशन मिले, एज अ CFA स्टूडेंट और एज अ CFA चार्टर होल्डर, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को फेस वैल्यू पर नहीं लेंगे। हम किसी भी चीज़ को फेस वैल्यू पर नहीं लेंगे, हम हर चीज़ को क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई कंपनी बोल रहा है कि मेरा सेल 100 से 150 हो गया है, तो आप एज अ CFA चार्टर होल्डर और एज अ CFA स्टूडेंट, आपको ये जो 50 का चेंज है ना, 50 का चेंज, ये क्यों हुआ ये समझना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये 50 का जो चेंज है, वॉज इट अ प्राइस ड्रिवन चेंज, कि भैया इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, प्राइस बढ़ गया, इस वजह से ये 50 का चेंज हुआ, कि वॉज इट लेड बाई अ वॉल्यूम ड्रिवन चेंज, कि जेन्युइनली कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो लोगों को समझ में आ रहा है एंड देयर इज अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है ना, और दूसरा बात कि ये जो 50 का चेंज आया है, क्या ये नए बेसिकली हमारे नए कस्टमर से आया है या एग्जिस्टिंग कस्टमर से आया है? सो विद दिस क्वेश्चनिंग माइंड, विद दिस प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म, यू शुड अप्रोच financial statement analysis, but in general your CFA curriculum. और जब तक आप ये questioning mind जिंदा रखेंगे, if I can extend this analogy to your real life as well, I think it's one of the good qualities that everybody should inculcate in themselves, कि कभी भी भाई लाइफ में कभी भी हमको कोई आके कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो हम उसको क्वेश्चन करेंगे, उसके फेस वैल्यू पर नहीं लेंगे। एंड एज एंड व्हेन इट बिकम्स अ हैबिट ऑफ यू, ठीक है ना, दैट इज हाउ यू विल बिल्ड योर एज ओवर द अदर्स। सो गाइज, आर वी क्लियर विद द प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म? सो अभी तक मैंने ऑफिशियली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चालू नहीं किया है। अभी तक मैंने सिर्फ आपको बताया है कि आपको क्या एटीट्यूड रखना है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सिलेबस पढ़ेंगे या इन जनरल जब आप इस CFA करिकुलम को पढ़ेंगे। तो एम आई क्लियर गाइज? एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक दिस क्लास टू बी वेरी इंटरैक्टिव, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू से येस नो, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। और आप प्लीज़ मेरे को ये भी बताइएगा इफ आई एम गोइंग स्लो, फास्ट, मज़ा आ रहा है सर, वॉट एवर इज योर फीडबैक, गाइज, आई वुड suggest कि please let them flowing so that we can make this fruitful, because at the end of the day you are spending the time and I am also spending my time,
and it should be a worthwhile experience for all of us. So ठीक है ना? So if this professional skepticism is clear to us, let's talk about कि सर इस फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कवर क्या करना है, ठीक है ना? तो पहले I will introduce you to all the topics that we have to cover in this basically learning module, और फिर हम उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करेंगे. तो अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसको हम लोग शॉर्ट में अब से FSA बोलेंगे, ठीक है ना, ये हमारे सिलेबस का काफ़ी एक बड़ा हिस्सा है. इसका वेटेज अराउंड आपका 14 to 15% है, ठीक है. सो इन जनरल, अच्छा, आप सबको बाय नाउ आई थिंक यू वुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम राइट, उसके 2 सेशंस होते हैं. एक मॉर्निंग सेशन होता है और एक आपका इवनिंग सेशन होता है, और हर सेशन में आपको 90 क्वेश्चंस आते हैं, राइट. 90 आपको MCQ दिए रहेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है. तो ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पोर्शन है, ये मोस्टली आपको मॉर्निंग सेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है. और इस मॉर्निंग सेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 to 25 क्वेश्चन फ्रॉम FSA, ठीक है ना. तो एग्जाम के लिए आप समझ सकते हो कि टोटल 180 क्वेश्चन में से आपको ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चंस FSA के मिलेंगे. और मॉर्निंग सेशन के लिए खास करके हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस टॉपिक एंड मोर. अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जस्ट टू शेयर माय थॉट्स बिहाइंड इट, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इट इज़ अ लाइफ स्किल. जैसे बोलते हैं ना कि आपको स्विमिंग आना चाहिए, ड्राइविंग आना चाहिए, ठीक है ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ CFA या एज अ CFA चार्टर होल्डर भी, जो आपका बेसिक ब्रेड एंड बटर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. इसके बाद है सब कुछ, ठीक है ना, इसके बाद है सब कुछ. तो आई होप आई एम क्लियर. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल कम इन मॉर्निंग सेशन. यू कैन एक्सपेक्ट 20 to 25 क्वेश्चंस ऑफ FSA, ठीक है. नाउ इफ आई हैव टू टॉक लिटिल बिट मोर अबाउट इट, तो FSA के अंदर में वी हैव 12 लर्निंग मॉड्यूल्स, ठीक है. हमारे पास कुल मिलाकर के 12 लर्निंग मॉड्यूल्स होंगे. 12 लर्निंग मॉड्यूल्स का मतलब 12 चैप्टर्स होंगे जो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कवर करना होगा. जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन. हो सकता है कि आज सुबह या दोपहर में किसी को टाइम नहीं मिला और वो पहली बार ज़िंदगी में they are attending class 1 of CFA. They should know कि हमारे CFA में हमारे पास कितने how many chapters we have or rather subjects we have. तो हमारे पास कुल मिलाकर के 10 subjects है. I hope all of you know that, but at the cost of repetition I'll just repeat it. And of course one among that subject is your FSA. और इस FSA के अंदर में again there are 12 लर्निंग मॉड्यूल्स, ठीक है ना. तो हम लोग एक मिनट 2 मिनट इनसे थोड़े रूबरू होंगे. वी विल गेट इंट्रोड्यूस टू दीज चैप्टर्स दैट वी हैव एज पार्ट ऑफ FSA. तो ऑब्वियसली पहला हमारा इंट्रोडक्शन है. एंड गाइज ऑफ कोर्स द वे आई एम राइटिंग, द आइडिया इज ऑब्वियसली you will get the notes of each of the chapter that we are talking about here. But of course at the same time I would appreciate all of you if you are maintaining a class copy, ठीक है ना. That is how I have learned and it has helped me a lot. और ये हमको क्लास में एक्टिव भी रखता है. सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, ऑफ कोर्स हम आपको होमवर्क अलग से देंगे. अब आपको सारे जो भी हम बात कर रहे हैं उसके लिए आपको फॉर्मल नोट्स मिलेगा. बट इट इज़ ऑलवेज गुड हैबिट टू स्क्रिबल. जब आप लिखते हैं तो आप सीखते हैं. एंड थैंक यू सना. It's really good that you are writing with me, and of course I would encourage others as well to follow the same, ठीक है ना. तो obviously there is a introductory part.
उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। जो तीसरा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। जो चौथा चैप्टर है वो है एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो। और कैश फ्लो को इन्होंने फर्दर 2 लर्निंग मॉड्यूल्स में बांटा हुआ है। सो पहला चैप्टर है एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो 1 एंड दूसरा है एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो 2। द सिक्स्थ चैप्टर दैट यू वुड हैव इज बेसिकली, अब हम उनके कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। सो ऑब्वियसली इट इज एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री। अगर ये टर्म्स किसी को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सर ये टर्म्स तो हमने पहले कभी सुने ही नहीं है, सो यू नो होल्ड योर हॉर्सेस। ऑफ कोर्स everything that we are writing over here we will be taking you through this. So obviously then it is inventory. Then the other point, the other chapter is analysis of your long term assets. And the 8th topic is analysis of your long term liability and equity. हम लोग एक एक टर्म को समझेंगे. And then analysis of your income taxes. The 10th topic would be your financial reporting quality. And then financial analysis technique. And the last topic is an introduction to financial modeling. Introduction to financial modeling. So I hope all of you would have made a note of these are the 12 learning modules that we have to go through as part of our financial statement analysis. ठीक है, यहाँ तक are we clear guys? And you know, before we dabble into these topics, I would like to know that whoever is attending the live class, can they tell me a little bit about themselves? You know, what are you currently doing? You know, are you you are a fresher just studying CFA, और you know आप जॉब के साथ कर रहे हैं, तो कैन आई गेट टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट ऑल ऑफ यू सो दैट यू नो आई गेट अ सेंस कि मेरे को चालू कहाँ से करना है. Okay, so I have somebody who is doing as first year BTech. Perfect. That's nice. Okay, we have somebody doing BCom. Perfect. I have also somebody who is into job and they just want to upgrade their career and they are starting with CFA. That's also nice. Perfect. Perfect. So I think I have some sense of you know the kind of people we have are in batch, but you know as a teacher working in MF in the rest team, I have completed CA Enter and full-time employee completed my MCom. Of course. Oh, so I think we have a wide cohort of people. That's always good to have people from different vocations, different profession. It adds to the learning. So thank you everyone for your responses. So obviously what I will do is I will assume a clean slate. ठीक है ना? मैं मान के चलूँगा कि आप एकदम फ्रेश हैं और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है. And I think the best way that I like to think about before we go into financial statement, हम थोड़ा सा financial statement के ऊपर में बात करेंगे. So let's assume that some of you, you know, they have completed their CFA and now they want to start their business. ठीक है ना? तो आप अपना business चालू करना चाहते हैं. आप अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं और बिजनेस चालू करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होता है? एनीबॉडी? The first thing that you need is idea. पर अगर आप देखेंगे आपके अगल बगल में तो सबके पास भर भर के आइडिया है. तो आइडिया के साथ आपको पैसे भी चाहिए होता है. You need some bit of money as well.
बट लेट्स से सम ऑफ यू समवेयर वाज एबल टू गेट दैट मनी एज वेल, ठीक है ना। तो मैं बहुत, हो सकता है किसी को ये बहुत लेमैन लग रहा होगा, बट एज आई सेड इट इज़, आई वुड अज्यूम दिस इज सेशन 101, ये सेशन 101 है टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, बिकॉज आई हैव स्टूडेंट्स from different fields, so you know, for some of you it might sound very benign, but you know, bear with me. First it will set the flow of the discussion, and definitely for some of you it might help you refresh as well, ठीक है ना। तो अगर आप बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू नो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज़ कि चलो भाई एक कंपनी चालू करते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स से आपने एक कंपनी बनाया ABCD लिमिटेड, और मोस्टली एज अ स्टूडेंट हमारे पास पैसे की कमी हमेशा होती है, तो मान लेते हैं कि आपने अपने भाई बंधु से कहीं ना कहीं से आपने 10 लाख रुपए इकट्ठा किया, ठीक है ना। विद दैट 10 लाख यू स्टार्टेड कंपनी ABC, एंड लेट्स से यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आपने वो 10 लाख रुपए जो लिए उसको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना। आपने क्या किया, उस 10 लाख को बैंक डिपॉजिट कर दिया। तो अगर मैं आपका फाइनेंशियल पोजीशन निकालूं, क्या निकालूं, मैं आपका अगर फाइनेंशियल पोजीशन निकालूं आज के डेट में कि आपका भैया आज का हिसाब किताब क्या है, यू नो व्हाट इज योर नेटवर्थ एज ऑफ टुडे, तो उसके लिए मैं वी प्रिपेयर समथिंग कॉल्ड एज अ बैलेंस शीट। इट विल शो योर फाइनेंशियल पोजीशन, और इस फाइनेंशियल पोजीशन में एक तरफ में कैपिटल होगा 10 लाख रुपए का, और हम मान लेते हैं कि आपने वो पैसा कहाँ जमा किया होगा, बैंक अकाउंट में जमा किया होगा 10 लाख का, ठीक है ना। इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल so that all of you can follow, and guys feel free to stop me and ask me questions. Now obviously you know, then you did your feasibility study and everything, and finally you found out कि यार इससे ना मेरे को कुछ मशीनरी खरीदना चाहिए। आपको ये मत पूछना कि सर 10 लाख में कौन सा मशीनरी मिलता है, एग्जाम्पल है, चिल करो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे आपने क्या करा, इस 10 लाख को लेके गए आप और आप बोले कि मेरे को मशीनरी चाहिए। तो जब आपने मशीनरी खरीदने गए तो आपको पता चला कि यार नहीं, 10 लाख दाम नहीं है, ये मशीनरी मेरे को मिलेगा 1 करोड़ का, ठीक है ना, 1 करोड़ का मशीनरी मिलेगा। सो ऑब्वियसली आपका खुद का कैपिटल है 10 लाख, आपको और पैसे चाहिए, सो व्हाट यू वुड नीड इज अ लोन, ठीक है ना। तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन हर ट्रांजैक्शन के साथ चेंज हो रहा है, राइट। सो नाउ लेट्स से कि आपने ये किसी बैंक को कन्विंस किया कि भाई यू नो मैं बहुत बड़ा बिजनेस बनाने वाला हूँ, या एंड प्लीज़ लेंड मी दिस मनी। ऑब्वियसली अगर आप जानते होंगे तो इंडियन गवर्नमेंट भी स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट करती है, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड यू सम अनकोलेटरलाइज्ड लोन। अगर आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हैं, तो अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंडिया में चालू करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। तो लेट्स से विद दैट गवर्नमेंट सपोर्ट आपका कैपिटल आ गया 10 लाख, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि आपको जो लोन मिला गवर्नमेंट से वो 1 CR का मिला। सो नाउ हाउ इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लुकिंग, हाउ इज योर फाइनेंशियल पोजीशन लुकिंग। अनकोलेटरलाइज्ड का मतलब होता है बिना किसी तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको पैसे चाहिए तो वो बोलते हैं कि भाई क्या गिरवी रखोगे। अनकोलेटरलाइज्ड का मतलब होता है कि आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको लोन चाहिए तो आपने पुराने ज़माने के मूवीज़ में देखा होगा कि आपको यू नो बहन की शादी करानी है, लोन चाहिए, जेवर गिरवी रखना पड़ेगा तब जाके लोन मिलेगा। लेकिन नाउ आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिफरेंट स्कीम्स वेयर दे कैन गिव यू लोन अनकोलेटरलाइज, मतलब बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे हुए आपको लोन दे देगी, बिकॉज दे वॉन्ट टू हेल्प the entrepreneurs, they want to build, because obviously मोदी जी का एक टर्म है ना, मेक इन इंडिया। तो अगर आप मेक इन इंडिया कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको बिना किसी इनफैक्ट अनकोलेटरलाइज्ड भी देगी और कमती रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी देगी, ठीक है ना। आप if anybody of you is interested in that, of course you can read it up, and of course if you have a better idea there are people who can help you get this loan। तो ये एक तो बिना गिरवी रखे हुए और कमती रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी मिलता है। सो नाउ हाउ इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लुकिंग लाइक। तो ऑफ कोर्स गिवन कि आपने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक मशीनरी भी आ गया होगा 1 करोड़ का, और फिर भी ऑब्वियसली पूरा पैसा अगर मशीनरी से में लगा दोगे तो डे टू डे ऑपरेशंस कैसे चलाओगे। सो स्टिल यू विल बी लेफ्ट विथ 10 lakhs ऑफ योर मनी टू रन योर बिजनेस।
सो बोलने का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है बैलेंस शीट, वो है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मैं ये बैलेंस शीट किसी को एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाऊं ना, प्रॉपर फॉर्मेट में, तो मेरे को क्या दिखेगा, मेरे को एक तरफ दिखेगा इक्विटी, इक्विटी का मतलब है जो कैपिटल आपने लगाया, दूसरा दिखेगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है ना, दूसरा मेरे को दिखेगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब है वो लोन जो आपने हो सकता है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए लिए होंगे, या जनरली हम 1 साल को कट ऑफ मानते हैं, तो अगर आपने कोई लोन 1 साल से ज़्यादा लिया होगा तो दैट कम्स अंडर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अगर आपने कोई यू हैव बॉट एनी इनपुट्स, आपने ऑब्वियसली मशीनरी खरीदा, बट मशीनरी के लिए फिर आपको कुछ इनपुट्स भी, तो आपको रॉ मटेरियल भी तो खरीदना पड़ेगा। तो वो जब आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो मान लीजिए आपने वो रॉ मटेरियल क्रेडिट पे लिया था, मतलब आपने उधारी में वो रॉ मटेरियल लिया, तो जब वो रॉ मटेरियल आप उधारी में लेंगे तो वो कहाँ आके बैठेगा आपके बैलेंस शीट में, वो आके बैठेगा यहाँ पर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में। बिकॉज जिससे भी आपने ये माल खरीदा है वो आपको फिर पैसे जल्दी मांगेगा ना, कोई 30 दिन में मांग सकता है, कोई 50 डेज में मांग सकता है, कोई 3 महीने में, वॉट एवर टेन्योर दैट यू अग्री विथ, ही विल लेंड यू दैट मनी फॉर, ठीक है ना। और दूसरे तरफ में आपके असेट साइड में आपको क्या दिखेगा, असेट साइड में आपको दिखेगा आपका करंट असेट्स। तो मान लीजिए कि आपने माल खरीदा, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने फिर उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके क्या किया, आपने प्रोसेस करके कुछ फिनिश गुड्स बनाया और उस फिनिश गुड्स को बेचा, you sold it in the market. Now obviously when you sold it, some of your customers gave you money in cash, while some of you some of them said that here you please allow me 30 days of credit and I will repay your money back. So on your balance sheet on the asset side आपको करंट असेट्स दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा रिसीवेबल। तो आपने मान लीजिए 15 लाख का माल बेचा उधारी के ऊपर में, तो दिस विल कम हियर एज 15 lakhs। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपने जो सामान मैन्युफैक्चर किया उसको पूरा का पूरा आप बेच नहीं पाए, सो ऑब्वियसली वेयर इट विल कम एंड सिट, इट विल कम एंड सिट इन इन्वेंट्री। मान लीजिए आपके पास में 5 लाख का सामान पड़ा हुआ है, तो दिस इज हाउ योर बैलेंस शीट इज नाउ करंटली लुकिंग। सो ऑब्वियसली इक्विटी आपने 10 लाख लगाया था, ठीक है, इक्विटी आपने 10 लाख लगाया था, 1 लाख का लोन ले लिया, मान लेते हैं कि आपने 20 लाख रुपए का इनपुट परचेज किया था क्रेडिट के ऊपर में, 15 लाख का माल आपने उधारी में बेचा, 5 लाख का इन्वेंट्री बचा हुआ है, हो सकता है कि आपके पास कैश अब सिर्फ और सिर्फ 7 लाख का बचा हुआ है, एंड देन यू विल हैव लॉन्ग टर्म असेट्स एज वेल। एंड लॉन्ग टर्म असेट्स में आपका क्या दिखेगा, आपको दिखेगा आपका मशीनरी जो आपने 1 करोड़ का लिया था। Now the reason I built this financial statement for you was कि अगर आप देखोगे तो हमारा एक चैप्टर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर बना है ना, they are meant for analyzing each of these components. So we have one chapter dedicated to equity and long term liabilities. Normally short term assets, इस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को हम करंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं। सो करंट लाइबिलिटी और करंट असेट्स को मोस्टली हम कवर करते हैं थ्रू पीएनएल, क्योंकि आपने देखा होगा वॉट एवर बिजनेस एक्टिविटीज यू वर डूइंग, ये बैलेंस उसी से जनरेट होता है। तो ऑब्वियसली व्हेन वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज आवर पीएनएल स्टेटमेंट, वी विल कवर दिस करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज एज वेल। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ डेडिकेटेड चैप्टर ऑन लॉन्ग टर्म असेट्स, जैसा मैं आपको बता रहा था। तो आपका एक चैप्टर, एंड ऑब्वियसली वी ऑल्सो हैव वन चैप्टर डेडिकेटेड फॉर दिस इन्वेंट्री एज वेल। तो आप देख रहे हो आपका जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, हम एक आइटम को एनालाइज करने वाले इस चैप्टर के अंदर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। एंड ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, आजकल इंडिया बहुत फेमस है इसके लिए, एंड इट इज़ गेटिंग लॉट ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी एज वेल एज कि इंडिया में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया में जो टैक्सेस है वो बहुत ज़्यादा है, एंड आप हर दिन न्यूज़ में देखते होंगे कि पीपल
ईदर दे आर इनटू बिजनेस और कोई जॉब में भी है, तो कोई दुबई जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई हांगकांग जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर टैक्सेस कमती है। तो जब भी आप इंडिया में कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपके कमाई का एक हिस्सा आपको इनकम टैक्स के फॉर्म में देना होता है ना? इट्स ऑलवेज ट्रू, इट्स ऑलवेज ट्रू, राइट? यू हैव टू गिव सम पार्ट ऑफ इट। जैसे इंडिया में कॉर्पोरेट्स के लिए 25% का डिफॉल्ट रेट है, और अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको है। तो एक चैप्टर जो डेडिकेटेड है वो है डेडिकेटेड ऑन इनकम टैक्स। अच्छा, जैसा मैंने बोला, एक लास्ट पॉइंट कि कभी कभी क्या होता है ना, जो आपने ये बैलेंस शीट बनाया, अच्छा एक बार के लिए हम क्विकली इसका प्रॉफिट लॉस भी बना लेते हैं। तो अगर हम इस कंपनी का P&L बनाएं तो इस कंपनी का P&L कैसे बनेगा? एक तरफ में हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स। मान लीजिए पूरे साल में हमने 30 लाख रुपए का सेल किया। इस 30 लाख का सेल के लिए आई वुड हैव पेड सम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो मैंने जो सामान खरीदा उसके ऊपर जो लेबर लगाया, दैट वुड हैव कॉस्टेड मी, लेट्स से मी सम 20 lakhs। एंड ऑफ कोर्स जस्ट buying the inputs, processing is not enough, you would also have to, so ये मेरा क्या बनता है? ये मेरा बनता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम लोग ग्रॉस मार्जिन भी बोलते हैं। इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं। 10 लाख का हुआ, पर क्या सामान बनाना खाली एनफ है सामान को बेचने के लिए? ऑब्वियसली नॉट, राइट? सो वी ऑल्सो हैव टू स्पेंड सम मनी ऑन आवर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एडमिन स्टफ पे। आपको एक HR हायर करना पड़ेगा जो आपके HR डिपार्टमेंट को चेक करेगा। सो यू विल हैव टू हैव सम पीपल इन योर कंपनी हु आर इनटू एडमिन एज वेल। तो मान लीजिए ये सब पे खर्चा आपका 2 लाख हुआ, ठीक है? दैट विल लीव यू विथ एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 30 में से 20 गया, 10 बचा था, 8 बच गया। नाउ ऑब्वियसली जो आपने लॉन्ग टर्म असेट्स खरीदा है, when we will go into the chapter of analysis of long term asset, we will understand कि हमको depreciate करना पड़ता है सर। हमको अपने असेट को डेप्रीशिएट करना पड़ता है। डेप्रीशिएट करने का मतलब है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि सपोज करिए आपने एक नई गाड़ी खरीद के लाया, यू बॉट अ मर्सिडीज वर्थ 1 करोड़, और आप उसको 1 साल बाद बेचना चाहते हैं। तो आप मेरे को बताइए कि आपको कौन से दाम पर वो मर्सिडीज आप बेच पाएंगे? ऑफ कोर्स इट्स एन एस्टिमेट, so there is all the chances that you will be wrong, but tell me for what price you will be able to sell that? Of course less than buying price। आदित्य बोल रहा है 10 से 20% लेस। तो बोलने का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म असेट खरीदते हैं, और जब आप उस असेट को यूज करते हैं, तो उस असेट का वेयर एंड टेयर होता है, और उस वेयर एंड टेयर का हम एक नाम बोलते हैं। उस वेयर एंड टेयर को हम एक नाम देते हैं। एनीबडी, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट वेयर एंड टेयर? जिस वजह से वो असेट लेस प्राइस पर सेल होता है एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव बॉट दैट असेट फॉर। व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी? ये जो वेयर एंड टेयर हुआ, डेप्रीशिएशन। परफेक्ट, तो उसको हम लोग डेप्रीशिएशन बोलते हैं। सो हम क्या करेंगे फिर? हम उसको डेप्रीशिएट करते हैं, डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। तो इसको लेके भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम जाएंगे अपने लॉन्ग टर्म असेट्स के अंदर की डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। एक बार के लिए अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना? एक बार के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा डेप्रीशिएशन मान लो 1 लाख रुपए आया है। ऑफ कोर्स आपको अगर याद होगा तो आपने ये बिजनेस चालू करने के लिए इंटरेस्ट लिया, आपने लोन लिया था, और मैंने आपको बोला था कि अगर आप मान लीजिए कोई मेक इन इंडिया के अंदर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक नया बिजनेस चालू करते हैं, तो आपको सस्ते दाम पर सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। बट फॉर दैट यू विल हैव टू पे सम इंटरेस्ट, राइट? यू विल हैव टू पे सम इंटरेस्ट। मान लेते हैं आप इंटरेस्ट भी 1 लाख रुपए का दोगे। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं ईबिट, ठीक है ना? इस टर्म को बोलते हैं ईबिट, और इस टर्म को, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं एबिटा, EBDITA,
ठीक है, इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन, ईबीटा, ईबीटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रीसिएशन टैक्सेस, ठीक है ना। तो दिस इज योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रीसिएशन एंड टैक्सेस। और जब हम डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, आप लोग अगर शार्क टैंक देखते होंगे, और अगर नहीं देखते तो हम इनकरेज करेंगे, तो वहां पर देखते होंगे कि ये टर्म यूज करते हैं कि आपके कंपनी का एबिटा कितना है, एबिटा। तो ये टर्म जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जब आप सेल प्राइस में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देते हैं, आप उसमें से अपने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हटा देते हैं, ठीक है ना, तो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ इज योर एबिटा, ठीक है ना। और उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। और उसमें से जब आप डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट निकाल देते हैं तो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, उसको हम लोग बोलते हैं ईबिट। ईबिट को हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर, इसको हम बोलेंगे अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, ठीक है ना, अर्निंग बिफोर income tax. And last but not the least, obviously you will be paying some taxes on the profit that you have made. इसको हम लोग EBIT बोल सकते हैं, my bad. अगर चाहिए तो हम यहाँ पर भी इसको ब्रेक कर सकते हैं and we can calculate something called as EBIT, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मैंने इसको साथ में ले लिया, बट अगर कोई चाहता है तो वो EBIT अलग से कैलकुलेट कर सकता है और फिर अलग से इंटरेस्ट उसको माइनस कर सकता है। इसको हम लोग पीबीटी भी बोलते हैं, इस ईबिट को हम पीबीटी भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड ऑब्वियसली जब आप टैक्स माइनस करते हैं तो इसको हम पैट बोलते हैं, इस पैट को हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो इस टर्म से हमको क्या समझ में आया जब हमने ये, और एक और नाम है, ठीक है ना, फॉर सम ऑफ यू जिसको ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता, ये पीएनएल क्या है, ये मेरा परफॉर्मेंस दिखाता है। परफॉर्मेंस हमेशा पीरियड पर डिपेंड होता है ना, सो परफॉर्मेंस इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम इसको अपना परफॉर्मेंस स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट, कि वो मेरा पोजीशन, अगर मैं एक्सक्यूज मी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, पर हम बोल सकते हैं वो हमारा औकात दिखाता है, ठीक है ना, हमारा नेटवर्थ दिखाता है बैलेंस शीट। प्रॉफिट लॉस दिखाता है कि हमने क्या मचाया है, व्हाट वाज माय फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। और इस परफॉर्मेंस स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हमको कुछ कुछ टर्म्स याद रखने हैं। वो टर्म क्या है कि हम अर्निंग बिफोर, हम इबिटा कैसे निकालते हैं, हाउ आर वी कैलकुलेटिंग इबिटा, हम ईबीआईटी कैसे निकालते हैं, हम ईबिट या पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, उसमें से फिर, क्योंकि ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर द इंडिकेटर्स। अगर मैं आपको इसका बैकग्राउंड दूं, तो जब आप सीएफए कंप्लीट करके, जब आप, ऑफ कोर्स सना, बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ऑफ कोर्स, तो जब आप एक इक्विटी एनालिस्ट बनेंगे, जब आप एज अ प्रोफेशन कंपनीज को एनालाइज कर रहे होंगे, तो आप ये सारे टर्म्स को ट्रैक करेंगे कि भाई कंपनी का एबिटा क्या है, कंपनी का ईबीआईटी क्या है, कंपनी का पैट क्या है, कंपनी का पीबीटी क्या है। तो ऑल दीज टर्म्स विल फॉर्म कॉर्नर स्टोर ऑफ योर एनालिसिस, ठीक है ना। एंड जैसा मैंने बोला कि ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज all about analyzing each of these line items of my financial statement. अच्छा, एक चीज़ के बारे में, before I move ahead, let me slow down and ask you, यहाँ तक कोई confusion है क्या, कोई question है क्या? Yes, no, not applicable? Perfect. Anybody? I'll pause for 10 seconds. I'll wait for any questions if anybody is having a question. Glad. Perfect. तो यहां तक क्लियरिटी आ गया। तो एक टर्म आप और याद रखिएगा, आज ना मैं आपको बहुत सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। तो जब मैं आपको, ऑफ कोर्स कीर्ति, ऑफ कोर्स
EBITDA, EBIT, PBT, ये तीनों ही डिफरेंट है, ये तीनों ही डिफरेंट है। अमन बोल रहा है सर आई थिंक EBIT इज OP। नहीं ब्रो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के पहले निकलता है, ठीक है ना अमन, आप चेक कर सकते हैं। एक और टर्म याद रखिएगा एंड दैट टर्म इज कैश इज सैनिटी, एवरी अदर थिंग इज वैनिटी। खास करके जो मारवाड़ी होते हैं, सो Zuzair, of course, जैसा मैंने आपको बोला, I think I told at the start of the class that obviously you will be given the class notes and those class notes are sufficient for you as far as preparing for exam is concerned, but then there are definitely something more that we are doing, right? For example, हमने अभी तक formally chapter चालू ही नहीं किया है, we are just trying to understand little bit more. So obviously I would suggest you guys to make a note of what I am writing together with me. First, it helps you make this class interactive. Second, it helps you with your building blocks. That's the right word. ठीक है ना? तो I would request all of you, अगर आप साथ साथ में लिख रहे हैं, nothing like that. तो एक और टर्म याद रखिएगा कि cash is sanity, every other thing is vanity. तो स्पेशली फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम मारवाड़ी फैमिलीज और फ्रॉम बिजनेस फैमिली, एक चीज़ आप दीज पीपल हैव मनी इनग्रेन्ड इन देयर बॉडी, ठीक है ना, उनको धंधा बचपन से दिखता और समझ में आता है। और अगर आपने अपने पापा जी को, ताऊ जी को, चाचा को देखा होगा, तो उनको ना इतना बड़ा बड़ा टर्म से मतलब नहीं होता। वो बोलते भैया गले में पैसा कितना आया, बाकी सब तो बकवास है, हमारा सेल इतना बढ़ रहा है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि भाई बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और कैश जा रहा है, एंड आर वी कैश फ्लो पॉजिटिव और नॉट। बिकॉज अगर आप कैश फ्लो नेगेटिव है तो आपको बैंक कितने दिन तक लोन देगा? हो सकता है इफ यू आर कैश फ्लो नेगेटिव for a prolonged period of time, so you will have to unwind your business, right? इसलिए बोलते हैं बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इक्विटी मार्केट में पैसे लगाते हैं ना, for them obviously they are very much interested in how your balance sheet, profit and loss account is looking, but they also look for a third statement जिसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का ना 3 पार्ट होता है। एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड देन कैश फ्लो फ्रॉम anybody who would like to control, who want to complete this cash flow from operating activity, cash flow from investing activity. What is the third activity that we have in our cash flow statement, guys? Anyone who would like to help me complete this? Perfect. Cash flow from financing activity. तो ये क्या करता है, जो मेरे बिजनेस के अंदर में पैसा आ रहा है और जा रहा है ना, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो अगर मैं बोलूं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या, तो इसके साथ मेरा जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। कंप्लीट नहीं हुआ पर एटलीस्ट नाउ होप यू विल हैव सम फेमिलैरिटी। तो अगले बार से जब भी आप ये टर्म सुने कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा है, इसका मतलब क्या, क्योंकि भाई एनालाइज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पता तो होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट योर बैलेंस शीट, दिस इज नथिंग
but your P&L account. This is nothing but your cash flow statement. And in addition to all of this, there are also something called as notes to accounts. And as and when we progress through the chapters, I will talk more on these notes to accounts. अभी के लिए आप मान सकते हो कि इसके अंदर कुछ additional information होता है. Additional information related to the 3 statements that we are preparing. ठीक है ना? So apart from the 3 statements that we talked about, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, वी हैव ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज नोट्स टू अकाउंट. और उसके अंदर क्या होता है सर? उसके अंदर ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है. सो नाउ आई थिंक ऑल ऑफ अस आर प्रिटी मच क्लियर इन टर्म्स ऑफ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है. राइट? एनी क्वेश्चन सो फार फ्रॉम एनी वन ऑफ यू? Perfect. So now let's talk about the analysis part. ठीक है? तो हम बात करते हैं अब एनालिसिस का. सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है? एंड दिस इज द फर्स्ट सब टॉपिक एज वेल. तो नाउ वी आर फाइनली entering into the first formal chapter that we have, which is called as introduction. तो ये है मेरा लर्निंग मॉड्यूल 1. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर में मैंने आपको क्या बताया कि कुल मिलाकर के 12 चैप्टर्स हैं, और 12 चैप्टर में से पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू FSA. ठीक है? और अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस एनालिसिस के ऊपर में. So whenever you hear this term called as financial statement, इस financial statement को consume करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं. Can anybody tell me who are the consumer of these financial statements? Anybody? Because जो हमारा पूरा चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर will get decided on who is the consumer of this financial statements. I will help you start. जो existing shareholders हैं, तो आदित्य बोल रहा है रिसर्च एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट. कृति बोल रही है एनालिटिक्स. आनंद बोल रहा है इन्वेस्टर, बैंक्स, क्रेडिटर्स. ओह, आई ऑल्सो सी अनुराग. हाय अनुराग, इट्स हाई फ्रॉम वन अनुराग टू अनदर, ऑब्वियसली पोटेंशियल इन्वेस्टर. सो आप सबने एकदम करेक्ट आंसर दिया, बट मैं आपको बताऊं एक और भी बंदा है, मोदी जी. ठीक है ना? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खाली दिलचस्पी इन्वेस्टर्स का नहीं होता, बट गवर्नमेंट का भी होता है. पर क्या मोदी जी अडानी अंबानी का बैलेंस शीट खुद देखेंगे? द आंसर इज नो. सो दे हैव सम रेगुलेटर्स एज वेल. ठीक है ना? हु परफॉर्म एज अ चेक, कि वो देखते हैं कि भाई ये लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो ढंग से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे. एंड अपार्ट फ्रॉम द रेगुलेटर्स, जैसा ऑल ऑफ यू आंसर्ड, ऑब्वियसली वी हैव बैंक्स जिसने आपको लोन दिया है या देने वाला है फ्यूचर के लिए. एंड ऑफ कोर्स somebody mentioned you also have potential investors. ठीक है ना? और potential investor जो एनालाइज करना चाहता है कि भाई इस कंपनी में पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं. एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज क्रेडिट एनालिस्ट एज वेल, जो बैंक्स को हेल्प कर रहा है एनालिसिस करके बताने में कि भाई इस कंपनी को पैसे देने हैं कि नहीं देने. एंड ऑफ कोर्स यू शुड ऑल्सो हैव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हु आर इवेल्युएटिंग देयर इन्वेस्टमेंट. आप हर दिन देखते होंगे न्यूज़ में कि भाई आई रियली रिस्पेक्ट हिम, द लेट राकेश झुनझुनवाला. जब भी वो कोई शेयर खरीदते हैं ना तो भी बहुत बड़ा न्यूज़ बनता है, और बेचते हैं तो भी बहुत बड़ा न्यूज़ बनता है. एंड देन यू ऑब्वियसली हैव अदर फंड मैनेजर्स एज वेल. जस्ट टू टेक सम नेम, समीर अरोरा, ही इज़ ऑल्सो वेरी रिनाउंड
इन्वेस्टर या आप बोल सकते हैं असेट मैनेजर, आप सुनील सिंघानिया के बारे में बोल सकते हैं. सो लोग इनको बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं ना कि इन्होंने क्या नया इन्वेस्टमेंट खरीदा है या इसने कौन से इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है. एंड गाइस, इफ आई कैन बेसिकली साइड ट्रैक फॉर सम टाइम, द बेस्ट ब्यूटी ऑफ दिस CFA कोर्स इज ना, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है. और प्रैक्टिकल का मतलब क्या है कि जस्ट डूइंग द क्लास विल डेफिनेटली हेल्प यू पास इन द एग्जाम्स. ठीक है ना. दैट इज आर we are here to take that effort from our side, and we are almost certain that if you follow our classes and do the things that we are saying, आप पास हो जाएंगे एग्जाम में बहुत फ्लाइंग कलर्स से. बट वॉट विल मेक यू अ गुड CFA चार्टर होल्डर इज दैट यू स्टार्ट ट्रैकिंग वॉट इज हैपनिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स. ठीक है ना. सो आज से इफ आई हैव दैट लिबर्टी, मैं तो आपको शपथ दिला दूं कि सर आज से हम ज़रूर ट्रैक करेंगे कि मार्केट्स में क्या हो रहा है. ठीक है ना. कौन सा शेयर IPO लेके आ रहा है, वो क्यों IPO लेके आ रहा है, किसी कंपनी अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गया तो क्यों हो गया. जितना आप रीड करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, एंड दैट विल टर्न यू इनटू अ बेटर CFA या चार्टर्ड अकाउंटेंट. कोई भी कोर्स आप करें, द मोर यू रीड the better you become. So keep that your eyes and ears open from now onwards. न्यूज़पेपर में भी किसी ने अच्छा एडवाइस दिया, रीडिंग डेली न्यूज़पेपर. बट न्यूज़पेपर में कौन सा आप न्यूज़पेपर पढ़े. सो यू नो, ऑफ कोर्स यू हैव फ्यू न्यूज़पेपर्स हु आर tilted towards financial markets. चाहे आप फॉर एग्जाम्पल आई रीड समथिंग कॉल्ड एज मिंट. ठीक है ना. बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है. It keeps you updated with what is happening in business world. Then you have something called as Business Standard. Then you have something called as Financial Express. और आज तो बहुत सारे apps भी हैं, right? Apps. For example, क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में. You know, I would urge all of you to have something called as investing.com in your phone. And of course there are so many, and it goes without saying, there are news channels. The whole point is that information becomes handy. and मैं आपको थोड़ी देर बाद, अच्छा ये financial statement analysis से linked है, मैं इसको ऐसे ही नहीं बोल रहा. मतलब obviously it will help you. These things at times work as a source of information for you. Source of information for you. मैं आपको जस्ट रीडिंग अबाउट कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट टाइम्स इज नॉट एनफ. ठीक है ना. क्योंकि हमको ये भी तो देखना है कि कंपनी कौन से इंडस्ट्री में है. इंडस्ट्री से भी इम्पोर्टेंट भाई, जिस कंट्री में वो कंपनी है उसका सिचुएशन क्या चल रहा है. कहीं कंपनी पाकिस्तान में तो लिस्टेड नहीं है, कहीं कंपनी वेनेजुएला में तो लिस्टेड नहीं है. ठीक है ना. उसके बाद कंपनी कितना भी अच्छा हो जाए, इट्स फ्यूचर इज डूम्ड ओनली. तो बोलने का मतलब क्या है कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हो ना, नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. सो एज आई वाज टेलिंग यू कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चालू करने जा रहे हैं. तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब है कि हम कंपनी के परफॉर्मेंस को प्लस पोजीशन को एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री प्लस इकोनॉमी. ठीक है ना. तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ये स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं चलता है. ठीक है ना. आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी का, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर ट्राइंग टू मेक अ स्टोरी कि भाई जोमेटो में, जिसका नाम क्या है, इटर्नल लिमिटेड, राइट, फॉर दोज ऑफ यू नो. तो अगर आप सोच रहे कि मैं जोमेटो में पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो आपको खाली जोमेटो का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है,
साथ साथ में आपको देखना है कि उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। भाई इंडस्ट्री आई मीन कंपटीशन। भाई स्विगी कैसा कर रहा है, कहीं स्विगी आगे तो नहीं निकल रहा जोमेटो से, ठीक है ना। सो यू विल ट्राई टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द इंडस्ट्री में कितने प्लेयर्स हैं, और इन दोनों में से इटर्नल लिमिटेड का कंपिटिटिव एडवांटेज क्या है। यू नो व्हाई मोर पीपल आर गोइंग फॉर इटर्नल, दे आर व्हाई मोर पीपल आर यूजिंग जोमेटो एंड कंसिडर टू स्विगी। तो उसके लिए तो आपको कंपटीशन को भी एनालाइज करना पड़ता है ना। एंड देन जैसे मैंने बोला, इकोनॉमी, एवरीथिंग दैट हैपन्स इन अ कंपनी, उसका एक डायरेक्ट लिंकेज है कि इकोनॉमी कैसा चल रहा है। अगर इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ अच्छा नहीं है, कंपनी कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना रहा होगा, अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो वो सामान खरीदेंगे कहाँ से। तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं तो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो स्टडी करना होता है, बट साथ साथ में वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड which industry is this company part of, and more important than not, which how the economy is doing. तो जब आप थोड़ा डीप जाएंगे, ठीक है ना, इनटू अप्रोचेस ऑफ इन्वेस्टिंग, जब आप थोड़ा डीप जाएंगे इनटू अप्रोचेस ऑफ इन्वेस्टिंग, तो आपको एक और टर्म मिलेगा। और वो टर्म क्या होगा पता है? वो टर्म होगा, एक को हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो अभी जो मैंने आपको बोला वो क्या है? दिस इज अ बॉटम अप अप्रोच। और एक अप्रोच होता है टॉप डाउन, सॉरी माय बैड, ये जो मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला ना कि हम कंपनी को स्टडी करेंगे, बट कंपनी को स्टडी करना खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडस्ट्री को भी समझो और इकोनॉमी को भी समझो। तो इसमें सबसे पहले किसको समझना है? इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, भाई बहुत पैसे है मेरे पास, एंड मैं सिर्फ अपने आप को इंडिया में क्यों रिस्ट्रिक्ट करूं? वाई शुड आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू इंडिया अलोन? ठीक है ना। आप बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो भी देखते होंगे, और दे वुड बी टॉकिंग अबाउट भाई यूएस में इन्वेस्ट करो, कोई बोलेगा चाइना में इन्वेस्ट करो। तो पहला एनालिसिस, जब आप इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो आप क्या एनालाइज करेंगे? किस कंपनी का, किस कंट्री का इकोनॉमी अच्छा है। साउथ कोरिया कैसा कर रहा है, जापान कैसा कर रहा है, ठीक है ना। इज देयर एनी यूरोपियन कंट्री वेयर वी कैन इन्वेस्ट सम मनी? सो आप सबसे पहला चीज़, जब आप इंटरनेशनली इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसके इकोनॉमी को समझने का ट्राई करेंगे। जब आप इकोनॉमी को समझ लेंगे कि अच्छा ठीक है, मेरे को यूएस का इकोनॉमी बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब यूएस के इकोनॉमी में कौन सा कंपनी अच्छा कर रहा है। सो ऑल ऑफ यू वुड बी हियरिंग अबाउट एआई, एंड आप सबको पता ही होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फैंग कंपनीज, ठीक है ना, जिसमें फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, निविडिया, गूगल आता है। दे आर द वंस हु आर ड्राइविंग द स्टॉक मार्केट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस में अभी तो सब कुछ एआई हो गया है, एवरीथिंग, nobody is talking about any other things. So if you are interested to invest in United States, आपको कौन से इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा? आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी रिलेटेड, सॉरी एआई रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड देन वंस यू डिसाइड ओके मेरे को एआई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, देन यू विल डेफिनेटली सी कि इस एआई में अच्छा अब कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है। इज इट माइक्रोसॉफ्ट हु इज डूइंग अ बेटर जॉब, और इज इट अ गूगल? तो आप फिर क्या करेंगे? फिर आप कंपनी वाइज एनालिसिस करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है ना, कि आपने इकोनॉमी से चालू किया, फिर आप इंडस्ट्री पे आए, एंड देन यू आर फाइनली टॉकिंग अबाउट द कंपनी। एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एंड अगर आप देखेंगे तो ये जो इकोनॉमी के ऊपर में चर्चा है, ये जो इंडस्ट्री के ऊपर में चर्चा है, ये हम इकोनॉमिक्स में करेंगे, है ना। इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट वी हैव, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट वी हैव इन आवर CFA लेवल 1।
तो ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसमें हम जब जाएंगे तो हम इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे कि इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज करते हैं, इकोनॉमी को कैसे एनालाइज करते हैं। पर ये जो कंपनी को एनालाइज करना है वो कहाँ पर है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर है। सर बॉटम अप अप्रोच के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। बॉटम अप अप्रोच में हम बोलते हैं कि भाई अगर कोई कंपनी अच्छा है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है, पर वो बोलता है कि भाई इतना नॉइज क्यों डालना, कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है। हो सकता है ना कंपनी किसी ऐसे टाइप का बिजनेस में है जिससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पीपल विल स्टिल बाय देयर प्रोडक्ट्स। होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन डिफेंसिव सेक्टर्स, देयर आर सर्टेन डिफेंसिव सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल कोविड आया, पूरा जगह पे त्राहिमाम हो गया, लेकिन दो टाइप के इंडस्ट्रीज थे, दे वर स्टिल बूमिंग। द फर्स्ट वाज योर हॉस्पिटल्स एंड द सेकंड वाज जो दवाई, द मेडिसिन कंपनीज। So obviously there are certain industries, there are certain companies who have little impact on how the economy is doing in those countries. And if you are interested in those type of companies, तो आप इतना फिर दिमाग नहीं लगाएंगे कि इकोनॉमी पे क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। आप करेंगे बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कंपनी का एनालिसिस काफ़ी है, हम इंडस्ट्री में इतना माथा नहीं मारेंगे, हम इकोनॉमी में इतना माथा नहीं मारेंगे। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत नॉलेज तो चाहिए होगा, आई एम नॉट सेइंग यू विल कंप्लीटली इग्नोर इट, ठीक है ना, बट ज़्यादा फोकस हमारा कंपनी के ऊपर में होगा रैदर देन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी के ऊपर में। और जब हम टॉप डाउन अप्रोच लगाते हैं तो ऑब्वियसली यू नो आवर मेजर फोकस is on economy plus industry as well। मतलब आपका 30-40% ऑफ डिसीजन मेकिंग यहाँ पर होगा और आपका कंपनी का जो डिसीजन है वो 60-70% पे होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर टिल हियर? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या, हमने कंपनी का परफॉर्मेंस समझना है, हमने कंपनी का पोजीशन समझना है इन context of the industry, in context of economy। Are we clear guys? तो आदित्य बोल रहा है अंडरस्टूड सर। एनीबडी एल्स? Perfect. So I'm completely with you. I understand that you guys had a long day. तो हम एक क्विक 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, ठीक है ना, एंड देन वी विल कम बैक एंड होपफुली मैं आपको आज ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगा। सो विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes, विल बी बैक and then we will spend maybe another half an hour and then I'll leave you for the day, okay? So I'll take a quick 10 minutes break and we'll meet after that.
Welcome back, guys. Before I proceed, I'll just like to get a confirmation from someone that the audio and video is good. So I'll probably wait a minute, ठीक है ना, so that everybody is back by then, and Aditya or Zuzair, if you have any question, कोई भी, not just related financial statement analysis, you can ask. I have 1 minute to spare, and then again we will go back to academics, go back to basics. Anyone having any questions? कुछ मेरे बारे में, कुछ आपके बारे में? You know, it's always good to know each other. आदित्य बोल रहा है would love to know about yourself. आदित्य ज़्यादा कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग जानने के बारे में, बट ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, आई एम बहुत, यार ये हर बार ना बोलने में बहुत अजीब लगता है कि मैं CA हूँ, CFA हूँ, ये बहुत सेल वाला फीलिंग देता है, यू नो. व्हाट आई कैन टेल यू आदित्य अबाउट माई सेल्फ इज़ दैट आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, and you know, it's been 10 years. I would be completing 11 years of learning, ठीक है ना, learning about companies, learning about life, and now I'm here to share that learning with you. I feel that's how your life should be, कि आप जो आपके experiences हैं आप उनको share करें, and you help others as well, and you make their journey bit more easier with whatever you have learned, because there is a saying ना कि आपको दूसरों से सीखना चाहिए, because you don't have enough time to make all the mistakes by yourself, ठीक है ना. So I hope I will make, I'll help you make less mistakes, or rather no mistakes when it comes to CFA level 1, and I'll probably help you prepare these subjects which I'm taking to best of my ability. Zuzair पूछ रहा है from where in India? I am from Kolkata. I am from Kolkata, born and raised here. Perfect. So this time I have told you a little bit about myself. How would I like to be known as, ठीक है ना, without going into मेरा qualification क्या है, मैं कौन से कंपनी में काम करता हूँ. सोहेल खान पूछ रहे हैं, just small thing to ask, will you share outline, I mean how we would proceed? So I think I did at the start, right, Sohail? So I don't know if you joined late or not, but if you see, I talked about कहाँ है? Yes. So here if you see, here I told you what are the so of course I will also be taking ethics, ठीक है ना, ethics भी मैं ले रहा हूँगा, और then there is another chapter called as corporate issuer, वो भी मैं ले रहा हूँगा. So अगर आप देखोगे, so mostly I will be helping you prepare almost, देखिए पढ़ाने का वेटेज अलग होता है और मार्क्स का वेटेज अलग होता है, बट अगर मैं मार्क्स के वेटेज वाइज बात करूँ तो यू नो आई वुड बी कवरिंग ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर सिलेबस. सोहेल, हम लोग ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंशियल वे में बढ़ेंगे. जैसे आज हमने फॉर्मली स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन के साथ में, ठीक है ना, and obviously then we will slowly and steadily move to other learning modules as well, ठीक है. Sohail, I'm not sure if I've answered your question, but still if you have any questions, you feel free to post that question and I can explain you further. So अब थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हैं. So as I was telling you
feeling a bit lost here. Guys, give me some time. So we were here. अच्छा, अभी तक ना हमने सिंस वी आर इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल, अनुराग हल्दर बोल रहे हैं, सर योर टीचिंग इज़ ग्रेट, काइंडली कंटिन्यू एज वन टीचेज अ लेमन. सो अनुराग, आई थिंक दैट इज़ व्हाट माय एंडेवर हैज़ बीन सो फार इन दिस क्लास, कि अगर कोई ज़िंदगी में पहली बार बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस और कैश फ्लो सुन रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए. आई थिंक दैट्स व्हाट माय एंडेवर हैज़ बीन. बट ऑब्वियसली, you know, keeping the course and the timeline within which we have to complete the course, we will have that in mind as well. But I can definitely assure you कि मैं हमेशा एक और टर्म होता है, you know, I like talking in terms. तो एक टर्म होता है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का, कि हर चीज़ को ना, हर चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट करिए टू इट्स बेसिक्स. तो दैट इज़ हाउ आई लाइक टू स्टडी एज वेल, कि हर चीज़ को एकदम शुरू से चालू करो तो चीज़ें क्लियर होती हैं. ठीक है. सो ऑफ कोर्स अनुराग, आई कैन अश्योर यू दैट वी विल बी एज थरो एज पॉसिबल, जो हमारे टाइमलाइन में हमको अलाउ करेगा. नाउ गाइज, एज ऑफ नाउ अभी तक हमने जो बात किया, हमने मोस्टली बात किया कि भाई अभी तक ना हम सिर्फ नंबर्स का बात कर रहे हैं. पर वन ऑफ द थिंग्स एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है ना, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, one of the things that you should always remember कि financial analysis is not just about numbers, ठीक है. it is much more beyond that. सर इसका मतलब क्या है? देखिए, at the end of the day, जब आप किसी कंपनी को स्टडी करते हैं, ऑब्वियसली यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द कंपनी, कि सर कंपनी काम क्या करता है, सर वो कौन सा प्रोडक्ट सर्विसेज बेचता है, उसके कंपटीटर कौन से हैं, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा दिख रहा है, उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट कैसा दिख रहा है, उसका बैलेंस शीट कैसा दिख रहा है. पर आप ये मत भूलिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि पहला पॉइंट जो आपको पकड़ के चलना है वो क्या चलना है कि नंबर्स डोंट लाई बट पीपल डू. तो अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया वो हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर के बारे में किया, कि सर नंबर कहाँ दिखेगा, नंबर बैलेंस शीट में दिखेगा, नंबर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में दिखेगा, नंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखेगा. सर पीपल का तो बात की ही नहीं, जो झूठ बोल सकता है, विच कैन मेक नंबर्स लाई. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट pillars of financial statement is also about assessing management. मैनेजमेंट का असेसमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर किसी कंपनी का प्रमोटर सी निकलता है, आई होप यू डोंट माइंड मी यूजिंग सम वर्ड्स, ठीक है ना, मतलब चतुर निकलता है. हाँ, सी से दूसरा मतलब मत निकालना. अगर किसी कंपनी का प्रमोटर चतुर निकलता है या फ्रॉडस्टर निकलता है तो कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो सब धरा का धरा रह जाएगा. ठीक है ना. सो असेसिंग कंपनीज मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट. उनका क्वालिफिकेशंस क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, एंड मोर देन दैट, आर दे एथिकल और नॉट. ठीक है ना. एथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आई विल टीच यू एथिक्स एज वेल. एथिक्स का मतलब होता है कि आपके जो वैल्यूज़ हैं वो अच्छे हैं कि नहीं हैं. मतलब आपने इंडिया के अंदर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे. एक तरफ में है आपके नारायण मूर्ति, ठीक है ना, जिन्होंने इन्फोसिस बनाया. देन यू हैव द नेम ऑफ अजीम प्रेमजी, जिन्होंने विप्रो बनाया. एंड दीज कंपनीज हैव क्रिएटेड वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स फॉर एजेस. ये कंपनी 30, 40, 50 साल से कम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, बिकॉज इनके जो प्रमोटर थे, दे वेर वेरी एथिकल, वेरी लर्नड, वेरी पैशनेट, एंड एट द सेम टाइम यू हैव अदर एग्जाम्पल्स एज वेल कि भाई
कुछ लोग कंपनी सिर्फ इसलिए चालू करते हैं ताकि वो लोगों का रुपया लेके भाग जाए, ठीक है ना। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में आएंगे तो सत्यम का, एंड एक एग्जाम्पल है एनरॉन का, दूसरा एग्जाम्पल है वर्ल्डकॉम का। सो ऑब्वियसली दीज आर सम ऑफ द नेम्स जहां पर कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हुए, और ये फ्रॉड किसने किया? ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने किया, जो कंपनी को चला रहे थे उन्होंने फ्रॉड कर दिया। सो असेसिंग मैनेजमेंट्स इफेक्टिवनेस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है ना। तो जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में सोचे तो आप नंबर्स के बारे में भी सोचिएगा और लोगों के बारे में भी सोचिएगा, मतलब आप रीड कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आज जब भी हम डिस्कस करते हैं, अगर आपसे कोई बोले कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, मैं एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हैं तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई म्यूचुअल फंड का मैनेजर कौन है, हु इज़ दिस गाय हु विल मैनेज आवर मनी, ठीक है ना। उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका क्वालिफिकेशन कितना है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। तो ये प्लीज़ रिमेंबर रखिएगा कि मैनेजमेंट को असेस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो। तो ये आपका इंट्रो था टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, जब भी आप एज अ इन्वेस्टर, एज अ इक्विटी इन्वेस्टर ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि आप कंपनी में पैसे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, वो डिसीजन आप कैसे लेते हैं? अगर कंपनी का, एक और टर्म आपके लिए, अगर कंपनी का आरओई ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है ना, इट इज वन ऑफ द मेट्रिक्स, तो ये कंपनी हम बोल सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट वर्दी है। आरओई का मतलब, एनीवन? आरओई का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कि भाई जो हमने खुद के पैसे लगाए हैं प्लस जो हमने लोन लिया है उस पे हमारा खर्चा कितना है। तो अगर एक कंपनी 20% का आरओई बनाती है और कंपनी का जो खर्चा है 14% का है, तो ऑब्वियसली कंपनी इज अर्निंग 6% मोर देन इट्स कॉस्ट and company is worth investing. So one of the things that you should always remember is that at the end of the day you are trying to find कि कंपनी का return on equity कितना है and उसका comparison करेंगे आप cost of capital के साथ। तो अभी तक हमने बहुत एक्सटेम्पर बात किया where we talked about things like कि भाई तो जो दूसरा टॉपिक है वो है कि भाई आप ना मेरे को एक फ्रेमवर्क बता दीजिए सर। अभी तक ना बहुत स्कैटर्ड लग रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे क्या। अभी तक आपने इसका मतलब बता दिया, ठीक है ना। बाय नाउ यू हैव टोल्ड मी व्हाई डू वी डू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, व्हाई, ठीक है ना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप या तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप कंपनी को उधार देंगे कि नहीं उधार देंगे, आप ये या तो आप ये डिसाइड कर रहे हो कि कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज कि सर इसका कोई फ्रेमवर्क है क्या, इज देयर एनी फ्रेमवर्क फॉर डूइंग दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? एंड द आंसर इज येस, वी विल कंप्लीट दीज स्टेप्स होपफुली टुडे, और अगर कुछ होगा तो हम लोग कर भी कंटिन्यू करेंगे, एंड देन वी विल एंड द क्लास। तो फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो अभी तक जो मैंने आपसे बात किया, हो सकता है एग्जाम में इतना ज़्यादा टेस्टेबल नहीं हो, बट ये वाला पोर्शन है कि सर आप मेरे को ना स्टेप बताइए, आप मेरे को हाउ बताइए। वाई तो बता दिया कि क्यों करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सर करते कैसे हैं वो थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपको क्या करना पड़ता है, बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स,
आपको आपका पर्पस डिफाइन करना पड़ता है और आपको उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी बात करना होता है। जैसा मैंने आपको बोला कि नो देर आर डिफरेंट पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कंपनी। इट कैन बी अ रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास 2-4 लाख रुपया है और वो सोच रहा है कि भाई जो मेरा सैलरी से इनकम आता है ना, मैं कहाँ लगाऊं, मैं कौन से शेयर में लगाऊं। ही इज़ वन पार्टी। द अदर पार्टी इज़ बैंक और NBFC जो ये सोच रहा है कि भाई इस कंपनी को और लोन देना है क्या, नहीं देना है। और इट कैन बी सम प्राइवेट इक्विटी फर्म और देयर कैन बी सम वेंचर कैपिटल फर्म जो कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और यू कैन हैव रेगुलेटर्स एज वेल। तो आप ये एनालिसिस किस पर्पस से कर रहे हैं, आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना चाहिए। सर ये डिफाइन करना इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई पर्पस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज योर पर्पस विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस and what type of tools you need to have when you are going to do the FSA. Your purpose will decide the questions that you want an answer to and the tools that you will use. ठीक है ना? तो डिपेंडिंग अपॉन पर्पस, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक क्रेडिट एनालिस्ट जिस तरीके से कंपनी को एनालाइज करेगा वर्सेस अ इक्विटी एनालिस्ट, दे बोथ विल हैव डिफरेंट लेंस। सर ये क्या बोल रहे हैं? ऑफ कोर्स नाउ इक्विटी एनालिस्ट विल बी मोर फोकस्ड ऑन ग्रोथ, they will be more focused on revenue, they will be more focused on PAT. वहीं पर एक credit analyst will be more focused on cash flow, they will be more focused on interest before earnings and taxes, they will be more focused on some other factors. ठीक है ना? तो इसके लिए इक्विटी एनालिस्ट इज मोर फोकस्ड ऑन कि भाई कंपनी कितने तेजी से ग्रो हो रहा है, बिकॉज इक्विटी एनालिस्ट इज मोर फोकस्ड ऑन फ्यूचर ऑफ द कंपनी। एंड क्रेडिट एनालिस्ट को किससे मतलब है कि भाई मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये सब कहानी बाद में बोलना। क्या कंपनी के पास इनफ कैश है, कंपनी का वर्किंग कैपिटल कैसा है, ठीक है ना? दिस इज अनदर थिंग दैट ही विल बेयर इन माइंड एंड ही इज मोर फोकस्ड इन प्रेजेंट कि भाई मेरा पैसा निकल जाए। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि क्रेडिट एनालिस्ट, देखिए जब भी आप कोई टर्म सुने तो आप उसको ना मतलब कभी भी ऑन इट्स ओन एनालाइज मत करिए। व्हेन आई एम सेइंग क्रेडिट एनालिस्ट इज मोर फोकस्ड ऑन प्रेजेंट, इसका मतलब ये है ही नहीं कि उसको फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, बट दे आर मोर फोकस्ड ऑन द करंट और उनका फोकस लेस है फ्यूचर के ऊपर में। वहीं पर एक इक्विटी एनालिस्ट इज मोर फोकस्ड अबाउट कंपनी आज से 5 साल 10 साल बाद क्या करेगी, बिकॉज जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, राइट? सो आप ये एनालिसिस किस पर्पस से कर रहे हैं उस पर आपका क्वेश्चन अलग अलग होगा ना। एंड देन ऑफ कोर्स द कॉन्टेक्स्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया सर? कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया कि आपको टाइम कितना मिला है, आपका ऑडियंस कितना है, आपको पैसे कितने दिए गए हैं, ठीक है ना? सो कॉन्टेक्स्ट आपके पास, ये सारी फैक्टर्स को मिला करके ही आप फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चालू करते हैं। तो बिफोर यू प्रोसीड विथ योर फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यू शुड ऑलवेज डिफाइन व्हाट इज योर पर्पस, एंड पर्पस के साथ में कॉन्टेक्स्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नाउ वंस यू हैव मेड पीस विद दिस, the second point that is there in financial statement framework is to collect the data. सर पता चल गया क्या क्वेश्चन पूछना है, पता चल गया टाइम कितना है। अच्छा टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको समझ नहीं आया कि कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जितना आपको पैसा मिला है, जितने आपको रिसोर्सेज मिले, आप उतना ही तो एनालाइज कर पाओगे। अगर मैंने आपको 2 दिन वर्सेस 2 महीने का टाइम दिया, आप एक इक्विटी एनालिस्ट है, मैंने एक एनालिस्ट को 2 डेज दिया
एनालिसिस करने का और एक एनालिस्ट को मैंने 2 मंथ दिया, ऑब्वियसली बोथ विल गिव मी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट द कंपनी। अच्छा, एक और पॉइंट, नाउ दैट वी आर टॉकिंग, समटाइम विद इन इक्विटी इन्वेस्टर ऑल्सो हमारा पर्पस ये भी हो सकता है ना, आपने सुना होगा कि भाई अगर आप शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सम इन्वेस्टमेंट्स आर गुड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर, और कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं कि हो सकता है साल 2 साल कंपनी कोई रिटर्न ना दे, बिकॉज कंपनी किसी रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू गुजर रहा है या कंपनी अभी इन्वेस्ट कर रहा है, बट इट विल गिव यू ऑसम मनी इन लॉन्ग टर्म। तो आप पर्पस समझ रहे हो, इवन विद इन इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी, एज अ इक्विटी एनालिस्ट भी आपका पर्पस अलग हो सकता है कि आप सर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, दूसरा कि आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहते हैं कि आप एज अ पी फर्म या वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाना चाहते हैं। फॉर समबडी लाइक रिटेल इन्वेस्टर, प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर हम बड़े कंपनीज में, हम ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाएंगे। भाई मेरे को नहीं पता कि ये जो स्टार्टअप है अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, आई डोंट हैव मनी टू लूज, सो रिटेल इन्वेस्टर विल फोकस टुवर्ड्स ब्लू चिप्स। वहीं पर ब्लू चिप्स नहीं, ठीक है ना, एक्सक्यूज मी फॉर स्लिप ऑफ टंग, सो यू विल फोकस मोर ऑन ब्लू चिप। वहीं पर अगर कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म है, कोई वेंचर कैपिटल फर्म है, तो वो बोलेगा कि भाई मैं ना 50 जगह इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे को ज़्यादा रिटर्न चाहिए, एक जगह पैसा डूब गया तो भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन है, द वे यू विल एनालाइज द कंपनी विल बी डिफरेंट। आप कितने टेन्योर के लिए पैसा लगा रहे हैं, दैट विल ऑल्सो डिसाइड हाउ विल यू डू योर एनालिसिस। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट जैसा मैंने आपको बोला, द फर्स्ट पॉइंट इज द पर्पस एंड द कॉन्टेक्स्ट, द सेकेंड पॉइंट इज यू कलेक्ट द डेटा। Now collect the data is a cornerstone of this chapter, and when we go you will see me talking more about it। पर आप बस ये समझ लीजिए कि आप ना कंपनी के पिछले 4-5 साल के पास्ट एनुअल स्टेटमेंट को निकालेंगे, एनुअल स्टेटमेंट / क्वार्टरली स्टेटमेंट को भी निकाल सकते हैं। तो और आपको तो फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, तो आप कंपनी के पिछले 4-5 साल के जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, आप उससे डेटा लेंगे। अच्छा, क्या खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेटा मिलता है? द आंसर इज नो। ऑब्वियसली एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो लुक इनटू द नोट्स ऑफ अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। फिर मैं आपको थोड़ी देर में और बताऊंगा कि आप पढ़ सकते हैं MDA, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, आप उससे भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज होती हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो आपको डेटा प्रोवाइड करती है कंपनी के बारे में। जैसे अगर मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो screener.in है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड ये जो इंडिपेंडेंट सोर्स है, दिस इज अ $1 billion इंडस्ट्री, $1 billion इंडस्ट्री। कभी कभी क्या होता है ना कि लुकिंग एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी वेरी चैलेंजिंग एंड एट द सेम टाइम it can take you quite some time. So there are vendors, there are people who provide you these services if you subscribe to their, obviously सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे आपको पता चलेगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लूमबर्ग, they are supposed to give you any financial information at the fastest speed and most precise speed, और ये आपको जो भी डेटा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए चाहिए वो आपको ब्लूमबर्ग देगा। आप, दिस इज अ लिस्टेड कंपनी इन US जिसका काम क्या है, डेटा प्रोवाइड करना। So obviously you can tap to some you can tap into some independent sources. And when you talk about independent sources, ये तो इसमें फ्री सोर्सेज भी हो सकते हैं और इसमें पेड सोर्सेज भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो पेड सोर्सेज में मैंने बता दिया। फ्री सोर्सेज में क्या होगा, आप ट्विटर पे जाके आप देखोगे, जिसको हम लोग आजकल X बोलते हैं, देयर आर पीपल हु आर पोस्टिंग देयर एनालिसिस अबाउट द कंपनी।
वहीं पर आप जाके फ्री में न्यूज चैनल्स पर भी कंपनी के बारे में जान सकते हैं, है ना। तो देयर आर डिफरेंट sources from which you can collect the data. Now once you collect the data, once you have collected the data, जो थर्ड पॉइंट है सर वो क्या है? जो थर्ड पॉइंट है वो है उस डेटा को प्रोसेस करना। और जैसा मैंने आपको बताया, प्रोसेस करने का मतलब क्या है? मैं डेटा को स्टैंडर्डाइज करूंगा। स्टैंडर्डाइज क्यों करेंगे? ताकि आप कंपैरिजन कर सके, ठीक है। आप कॉमन साइज, इसके बारे में हम और समझेंगे, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके, ठीक है। तो आप डेटा को प्रोसेस करेंगे ताकि आप रेशियोज कैलकुलेट कर सके, ठीक है। रेशियो कैलकुलेशन के ऊपर में हमारा एक अलग से चैप्टर है, फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स, फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक, देयर इज अ सेपरेट चैप्टर। तो प्रोसेस, जब व्हेन यू आर प्रोसेसिंग द डेटा, आप क्या कर रहे हैं? आप डेटा को, और कभी कभी हमको डेटा को ना एडजस्ट करना पड़ता है, तो प्रोसेस द डेटा वाले स्टेप में आप डेटा को एडजस्ट करते हैं, आप उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, आप उसका कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। गाइज इफ समथिंग इज, स्पेशली अगर ये टर्म आपको बहुत अंदर नहीं घुसा, अब इसके ऊपर में डिटेल में बात करेंगे, बट आप बस अभी के लिए ये मान के चलिए कि हम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, हम डेटा को एडजस्ट करेंगे। जब ये सब हो चुका, जब हमने रेशियोज कैलकुलेट कर लिया, फाइनली कम्स step number 4, which is called as analysis, ठीक है ना। और डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पर्पस क्या है, आप जो है डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है। आप डेटा को एनालाइज करेंगे। 5th नंबर वाले पॉइंट में आप फिर आप उसको कम्युनिकेट करेंगे। क्या करेंगे? आपने जो भी एनालिसिस किया, या तो आपने खुद के लिए किया था तो कोई बात नहीं, you analyze the data, you will take your decision, but if this is an analysis that you have done for your somebody else, then you need to communicate, right? And when you are communicating your analysis to somebody, आपका CFA इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई बहुत सावधानी से कम्युनिकेट करना, क्लियरली बताना कि भाई ये फैक्ट है, मतलब ये डेटा मैंने कहां से लगाया वर्सेस ये मेरा ओपिनियन है। दूसरा, जब भी तुम अपने एनालिसिस को कम्युनिकेट करना, तुम उसके चैलेंजेस को बताना, ठीक है ना, या लिमिटेशंस को बताना। You do talk about the limitations, and last you talk about the risk. So whenever you are communicating your analysis, you clearly tell people कि देखो ये डेटा है और ये ओपिनियन है, ये दिक्कत आया था, ये चैलेंजेस आए थे, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिला नहीं सर जब मैं एनालिसिस कर रहा था। यू टॉक अबाउट द चैलेंजेस एंड द लिमिटेशंस, एंड देन यू टॉक अबाउट द रिस्क कि भाई इन केसेस में अगर ऐसा हुआ तो मेरा एनालिसिस किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कल इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो जाए, तो आज भले ही मैंने जो भी एनालिसिस करके बोल दिया ये कंपनी खरीद लेना, अगर लड़ाई हो गया, अगर वॉर हो गया, तो मेरे एनालिसिस वॉइड है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप रिस्क के बारे में भी बताएंगे, मैंने आपको बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलो अप। भाई जब भी आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बनाते हो, दिस इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी, इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, आपको कंटिन्यूअसली उसमें रिविजन करना होता है। तो अगर आप किसी कंपनी को आज एनालाइज करना चालू करते हैं, इफ यू स्टार्टेड एनालाइजिंग रिलायंस, so you can't just do this analysis once. Every quarter Reliance is coming with its result. आपको अपने एनालिसिस को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको अपने एनालिसिस को अपडेट करना पड़ेगा, और अपडेट के बाद हो सकता है कि आपके डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा। So you will always have to keep yourself updated with what is happening in that company, and
if there is something that's gonna change your opinion, that is something, there is something so serious happened जो आपके डिसीजन को बदल सकता है, तो आपको आपके एनालिसिस को चेंज भी करना पड़ेगा. So there are 6 steps that we have to do whenever we are doing a financial statement analysis, and these are the things that you should remember. And जैसा मैंने आपको बताया, ये एग्जाम में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टेबल है. ये जाते जाते पता नहीं क्यों मेरे साथ गेम खेल रहा है. गिव मी अ मिनट. ये लिया मैंने, ठीक है. सो प्रॉब्ली विल टेक अ पॉज हियर, बट बिफोर आई लेट यू गो, देयर इज अ वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज पिक 1 or 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का, ठीक है ना. अगर आपको जोमेटो पसंद है, जोमेटो उठा लीजिए. आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर उठाना है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर उठा लीजिए. इफ़ यू आर समबडी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, you can pick it up any other. You can pick Amazon, you can pick Microsoft, but please start picking an annual report and start going through it. Then only this thing will make sense to you. And do ask me questions when you go through your financial statement. जब आप उसके annual report को पढ़ेंगे तो आप प्लीज़ मेरे से पूछिएगा, सर ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है. And that is where your real growth will come from. ठीक है ना. So we'll take a pause, but this pause is with a promise from all of you that you will pick one financial statement from today and you will start analyzing it, and then we will talk about them as we progress. ठीक है ना? So it was wonderful meeting all of you in the first class. I hope you had a good time. I had taking this lecture with you. Obviously we'll meet tomorrow and we'll discuss further. Until then, have a great time. Thank you.